थाना डिफेंस सी की हदूद में जो कत्ल की वारदात होती है, डबल मर्डर होता है, उसके मुलजमान थाना डिफेंस सी इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर लिए हैं। किस तरह से कत्ल की वारदात करते हैं, मुलजमान से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शबीर अहमद। शबीर कित्थे दा रहने वाला है? गागे पिंड ਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ? गागा। गागा पिंड ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਅੱਛਾ, ਕਿਲੇ। ਠੇਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੱਚੇ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਨਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੌਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ? ਅਸਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, 2 ਮੋਦਰ ਲਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਜਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੜਿਆਰੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੜਿਆਰੇ ਥਾਣਿਓਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਏ ਨਾ ਬਰਕੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਰਕੀ ਥਾਣੇ ਵੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ 2 ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਸ 6 ਜਾਂ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਭਰਾ ਸਨ? ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਫਾਇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਨਾ 13 ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 2 ਮੋਦਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਰ, ਮੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ 8-7 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਭੁਗਤੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਗਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਜੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ।
ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਜਦ ਦੋਨੋਂ ਹਸਾਰ ਉਹਦੋਂ ਬਕੂਲ। ਅਮਜਦ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਮਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ, ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੰਡਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਹੰਡਿਆਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਦੋ ਹੈ। ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ 30,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ 36,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਅੱਛਾ, ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਐਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਲਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਸਰ ਜੀ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 25 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਕੀ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਵੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾਮ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਮਜਦ ਦਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਮਜਦ। ਅਮਜਦ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ? ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਐਮਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਐਮਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਕਤਲ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਅਮਜਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਅਮਜਦ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇਰਾ ਅਮਜਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਧਰੋਂ? ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਚਾਚੂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਸਗਾ ਚਾਚੂ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं सर, इस तरह का पहली दफ़ा किया है? अमजद ने भी पहली दफ़ा ही किया है? ऐसे तरह ही है? जी हाँ जी। अच्छा जी। जी, ये यहाँ पे मौजूद है आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस की। थोड़ी सी तफसील इनसे भी लेते हैं कि किस तरह से मुलजमान को पकड़ा। और ये दोनों मुलजमान जो है एक ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर डबल मर्डर करते हैं और उसके बाद फ़रार हो जाते हैं। शाकिर साहब, किस तरह से गिरफ़्तार किया इन तीनों मुलजमान को
और ये तो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही हम इस केस में, इस कत्ल में मुलविस हैं। पहले तो ये लोगों ने, इन्होंने, इनकी पुरानी दुश्मनी थी। इन्होंने मर्डर के बाद हमने वकूआ क्राइम सीन को कार्डन किया, कार्डन करके वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की, डेड बॉडीज़ हमने पोस्टमार्टम वगैरह करवा के हमको मुल्ज़मान के पास जियो फेंसिंग वगैरह करवाई हमने अपने सोर्स से टेक्निकल बुनियादों से इनके IME नंबर ट्रैक किए। कुछ बंदे हमारे इन्फॉर्मर थे, इन्फॉर्मेशन लेकर हमने ग्रीन केप की तरफ से, उधर गज्जू माता की तरफ से हमने रेड किया। रेड करके इन दोनों को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया दोनों ने कि हमने, ये हमारी दुश्मनी थी, हमारे भाई को इन्होंने मारा है। एक कहता है हमारे दोस्त को इसने मारा है, तो इन्होंने ये कत्ल किया, दोहरा कत्ल इन्होंने किया। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। ये मुल्ज़मान 3 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, तो इनका जैसे किरदार जो होगा सामने आएगा, इंशाल्लाह मेरिट पर तफ्तीश करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, आला कत्ल जो है दोनों से बरामद कर लिया अभी सर ये 4 दिन के रिमांड से हमने मुतलका कोर्ट से इनका रिमांड लिया है फिजिकली। रिमांड के दौरान इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनकी निशानदेही पर इंशाल्लाह आला कत्ल भी बरामद करेंगे और मेरिट पर मुकदमा को यकसू करेंगे। ठीक है। अच्छा शाकिर साहब, ये बताएंगे जो ये वाक़या बताते हैं कि रंजिश थी, वो उसकी इज़्ज़त को देख के जलता था, उसकी शोहरत से जो है वो जलता था, तो इस वजह से कत्ल किया। तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आई कि एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, पहले वो कत्ल होते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग कत्ल हो जाते हैं। असल लड़ाई की वजह क्या है? सर हमने इन्वेस्टिगेट किया है, हमने अडियारा पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया है। जो इनका भांजा है, जिसकी तरफ से ये कहते हैं हमसे उसकी कसम खाई थी, उसके मर्डर के बाद हमने उसको मारा है, वो काफ़ी बदनाम ज़माना था वहाँ, उसकी जगह टैप था। वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो मदई फरीक है इस मुकदमे में, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ज़राई ज़मीन रकबा वगैरह जो फ़रोख्त होता था, वो साग उर्फ साकी उसका नाम था। वो कहता था जाके कि मुझे भी इसमें से हिस्सा दो जो आपने प्रॉपर्टी में पैसे लिए हैं। तो वो मुद्दई पार्टी इस कदर तंग थी, दौरान इन्वेस्टिगेशन जो बात सामने आई है, इस कदर तंग थी कि पहले मुद्दई फरीक जो इस मुकदमे के हैं, डबल मर्डर के मुद्दई, उनके फरीक के 9 बंदों को उसके अकेले ने 9 बंदों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया, जिसके 324 ताज़ीरत पाकिस्तान का मुकदमा थाना अडियारा में हुआ। बाद में उसमें वो उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे वो सुलह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दई फरीक की जो इलाका का खुफिया अलानिया हमने तफ्तीश की है अपने तौर पर, वो लोग उससे बहुत उसका रोब दबदबा था साग और साकी का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारा जीना रहा। उन्होंने कहा कि ये गांव छोड़ दो वरना मार दूंगा। तो वो मुद्दई फरीक ने फिर उसको मर्डर किया, जो बात सामने आई है दौरान इन्वेस्टिगेशन। और तो यकीनन फिर जो उस जो मरने वाला है, तो उसके जो दोस्त है या उसका जो भांजा है, ये भी कोई इसी तरह की शोहरत, बुरी शोहरत के हामिल होंगे वहाँ पे इलाके में? सर अभी तो इनकी दुश्मनी थी, ये जाहिर है, आपको पता है साहब का रंजिश है इनकी बन गई है, क्योंकि इनका भी बंदा उन्होंने मर्डर किया था। तो ये लोग उस वक़्त से आपस में क्लैश था। इन्होंने डबल मर्डर ज़ाहिर है 2 बंदों को मारा, बुरे तरीके से मारा, बहुत बेदर्दी से, और बहुत ज़्यादा वहाँ गांव में जाके हवाई फायरिंग की है, जैसे जश्न मनाया, उसका भी मुकदमा थाना हडियारा में दर्ज है। तो ये दोनों, वो मलक बरादरी है, ये अंसारी बरादरी है, इनका अब तो ये सारा ऐसा ही चल रहा है। अगर ऐसे इनकी गैदरिंग होती रही तो ये एक गाँव में रहना, पहले भी जो लोग मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने कहा था कि आप अलग-अलग हो जाएँ, कुछ कोशिश भी करते थे इनकी सुलह की, जो हमारे नोटिस में बात है ये दौरान इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इनका ऐसा कोई नहीं हुआ। इन्होंने ये ठान ली थी कि हमने मारना है, इनके सारे बंदे मार देने हैं, ये शबीर और अमजद वगैरह जो नामजद FIR हैं, और जो इनकी जो मामनत की है, जिन्होंने इनको कहा कि इनको ब्रीफ किया है, इनकी आनत की है कि ऐसे आप करो, आपको बचा लेंगे। तो अभी सर फर्स्ट रिमांड है इनका, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरिट पर करेंगे। मेरे अफसरान बाला के पेश करके हमने सारे हालात बताए हैं, क्राइम सीन पर भी आए थे, तमाम हालात से अफसरान बाला आगाह हैं। इंशाल्लाह मेरिट पर मुकदमा को यकसू करेंगे, किसी को बेगुनाह चलान नहीं करेंगे। ये थे जी आयो शाकिर साहब, जिन्होंने मौक़िफ़ बयान किया, मुल्ज़मान का भी आपने मौक़िफ़ सुना। दरिंदा दुश्मनी वजह वही ज़मीन प्रॉपर्टी, वो वजह बनी, और कत्लो गारत दोनों ग्रुपों के दरमियान अभी तक जारी है। और जो अहले इलाका है, जो उस गांव के लोग हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि अगर इस मामले को
रोका ना गया तो मज़ीद खुदा न खास्ता कत्ल व गारत होने का इम्कान है। चशमदीद गवाहान भी सामने आ जाते हैं और उससे हमें ये चीज़ सामने आती है कि ये दरीना दुश्मनी पे मर्डर हुए। ठीक उस है। दरीना दुश्मनी का जिस वक्त हम डिटेल लेने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें सामने आती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी हैं। अब ये एक प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था कि जिसमें प्लान करके बंदे मारे गए। तो इसमें सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज ये होता है कि जिस वक्त इस किस्म का मर्डर होता है तो कातिल ने अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होता है, या तो वो फौरी मुल्क से बाहर निकल जाता है, कोई और उसने अपना बंदोबस्त किया होता है। तो इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हमारे लिए एक रियल चैलेंज थी। हमने इनकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात मेहनत की। FIA को ऑन बोर्ड लिया, नादरा को ऑन बोर्ड लिया कि ये अपने पासपोर्ट्स ना बनवा सकें, निकल ना सकें मुल्क से। जो हमारी हैं टिकटिंग एजेंसीज़ हैं, यानी कि जितनी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उन एयरलाइंस को ऑन बोर्ड लिया, ड्यूटी डिप्लॉय की मुख्तलिफ जगह पे कि ये बंदे बाहर ना जा सकें। फिर जो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है, सेल डाटा और बाकी चीज़ें, इनसे मदद लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो 4 के 4 मुल्ज़मान थे जो इस कत्ल में नॉमिनेटेड हैं वो 4 के 4 पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। और इन द मीन टाइम वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो चुके थे। तो ये हमारे 4 इश्तिहारी जो हैं वो हम पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इसमें दो फिल्मी स्टोरियाँ हैं सर। एक तो ये जो आपने बयान कर दी कि उसने कसम खाई थी। दूसरी इसमें यह है कि जिस वक्त हम इन मुल्ज़मान को पकड़ के लेके आते हैं तो वो कहते हैं जी कत्ल तो हमने किया नहीं, कत्ल तो मेरा भतीजा है अली रज़ा, उसने किया है। ठीक है। अब अली रज़ा नॉमिनेटेड FIR भी नहीं है, अली रज़ा के मुतालिक कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है, और अली रज़ा इवन इस वकूए के बाद हडियारा गांव में फायरिंग होती है तो उस फायरिंग का मुल्ज़िम वो ज़रूर है। ठीक है। तो अब एक बंदा या तो हडियारा गांव में फायरिंग कर सकता है या यहाँ पे कत्ल कर सकता है। तो ये चीज़ एक टर्निंग पॉइंट थी। जिस वक्त अली रज़ा को हम दोबारा पकड़ने में कामयाब होते हैं, अली रज़ा से पूछते हैं, उसने कहता है जी बिल्कुल मैंने मारे हैं बंदे। तो वो इतराफ़ कर लेता है, इतराफ़ जुर्म कर लेता है, ठीक है, मैंने मारे हैं। ठीक है। अब जो मुद्दई हैं वो इस चीज़ पे बज़ीद हैं कि ये तो बंदा वहाँ पे था नहीं। ये चीज़ एक हमारे लिए थोड़ी मुश्किल आई क्योंकि आज से 2-4-5 साल पहले का जो थी पॉलिसिंग उसमें तो हम फिज़िकली इंटरोगेट कर लेते थे चीज़ों को और चीज़ें सामने आ जाती थी। अब आजकल की पॉलिसिंग में जो आप मॉडर्न पॉलिसिंग कर रहे हैं इसमें फ़िज़िकली किसी को जो है इंटरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। याद रसूल साहब हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस सी। डबल मर्डर होता है, पुलिस की एफर्ट सामने आती हैं, कत्ल के 4 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनमें एक कातिल ऐसा भी है, मुल्ज़िम ऐसा भी है जो कत्ल का बदला लेने की कसम अपने अजीज़ो कारब की कब्र पे लेता है और वो जो कहता है, जो कसम खाता है वो पूरी भी कर देता है। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इजाज़ साहब ये तो फिल्मों में होता है कि कोई मुल्ज़िम कब्र पे जाके कसम खाए कि कत्ल का बदला लूँगा, इसकी थोड़ी सी बारीकी बताइए कि क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और मुल्ज़मान किस तरह जो है वो गिरफ़्तार हुए, वाक़या क्या है? ये बेसिकली जी गागा गांव के रहायशी हैं दोनों पार्टियां। इनका कोई साबका हमें पूरी कोशिश के बावजूद भी कोई हमें रंजिश की वजह नहीं समझ आ सकी, जिसको उनको इवन मुल्ज़मान भी ये चीज़ बताने से कासर हैं कि इनकी रंजिश की वजह क्या है। ठीक है। जस्ट एक ही गांव में रहते थे, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर तलक कलामी, और उस तलक कलामी के नतीजे में 7 लोगों को फायर लगते हैं। गागा गाँव में 324 का मुकदमा दर्ज होता है। ठीक है। और ये उसी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के 2 बंदे हमारे इलाके में कत्ल होते हैं। ठीक है। वो उन 7 लोगों के जो फायर लगते हैं उसका बदला लेने के लिए वो जो मेन अक्यूज़ होते हैं इसहाक और शब्बीर, उनमें से इसहाक नामी बंदे को गागा गांव में ही हडियारे के इलाके में कत्ल कर देते हैं। ठीक है। जब इसहाक कत्ल हो जाता है तो जो उसका साथी को अक्यूज़ड होता है 324 का शब्बीर, ठीक तो है। वो इसहाक की कब्र पे खड़े होकर ये चीज़ कहता है कि मैं इसहाक के कत्ल का बदला लूँगा। ठीक है। ये आज से कुछ 4 महीने पुरानी बात है। उस मुकदमे की तफ्तीश हडियारा थाने में शुरू हो जाती है। हडियारा वालों ने जो ओरिजिनल मुल्ज़मान थे वो तकरीबन पकड़ लिए, पकड़ने के बाद उनको जुडिशल कर दिया। अब शबीर के पास कोई मुल्ज़म नहीं था जो उस कत्ल का जेन्युइन मुल्ज़म हो जिससे वो बदला ले सके। ठीक है। लेकिन इसके ज़हन में था कि मैंने बदला लेना है। ठीक है। तो उस बदले लेने में इन्होंने जो उस मुकदमे को फॉलो कर रहे थे 2 लोग, जिस वक्त वो DSP साहब बरकी जो हैं उनके कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने केस की पैरवी करने के बाद अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तो वो फेज़ 7 है हमारा, फेज़ 7 के इलाके में वो उनको घेरते हैं और घेर के यहाँ पे 2 लोगों को जो दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे दोनों को कत्ल कर देते हैं। ठीक है। जिस वक्त पुलिस मौके पे पहुंचती है तो एक बंदे को 8 फायर लगे होते हैं, एक बंदे को 7 फायर लगे होते हैं। ठीक है। जो कि नफ़रत की निशानी होती है कि अगर खुदा इनिशियली हमारे में यही था कि ड्यूरिंग वारदात कोई मर्डर हुए हैं शायद। तो जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो वो अंदाज़ा होता है कि ये ड्यूरिंग वारदात मर्डर वाली बात नहीं है। उनकी जेब से उनके CNI से निकलते हैं, गागा का एड्रेस आ जाता है। गागा हम हडियारा थाने से रब्ता करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये
सबका इनकी दुश्मनी चलती आ रही है। वो चश्मदीद गवाहान भी सामने आ जाते हैं और उससे हमें ये चीज़ सामने आती है कि ये दरीना दुश्मनी पे मर्डर हुए हैं। उस दरीना दुश्मनी का जिस वक्त हम डिटेल लेने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें सामने आती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी हैं। अब ये एक प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था कि जिसमें प्लान करके बंदे मारे गए। तो इसमें सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज ये होता है कि जिस वक्त इस किस्म का मर्डर होता है तो कातिल ने अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होता है, या तो वो फौरी मुल्क से बाहर निकल जाता है, कोई और उसने अपना बंदोबस्त किया होता है। तो इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हमारे लिए एक रियल चैलेंज थी। हमने इनकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात मेहनत की। FIA को ऑन बोर्ड लिया, नादरा को ऑन बोर्ड लिया कि ये अपने पासपोर्ट्स ना बनवा सकें, निकल ना सकें मुल्क से। जो हमारी हैं टिकटिंग एजेंसीज़ हैं, यानी कि जितनी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उन एयरलाइंस को ऑन बोर्ड लिया, ड्यूटी डिप्लॉय की मुख्तलिफ जगह पे कि ये बंदे बाहर ना जा सकें। फिर जो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है, सेल डाटा और बाकी चीज़ें, इनसे मदद लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो 4 के 4 मुल्ज़मान थे जो इस कत्ल में नॉमिनेटेड हैं वो 4 के 4 पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। और इन द मीन टाइम वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो चुके थे। तो ये हमारे 4 इश्तिहारी जो हैं वो हम पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इसमें 2 फिल्मी स्टोरियाँ हैं सर। एक तो ये जो आपने बयान कर दी कि उसने कसम खाई थी। दूसरी इसमें यह है कि जिस वक्त हम इन मुल्ज़मान को पकड़ के लेके आते हैं तो वो कहते हैं जी कत्ल तो हमने किया नहीं, कत्ल तो मेरा भतीजा है अली रज़ा, उसने किया है। ठीक है। अब अली रज़ा नॉमिनेटेड FIR भी नहीं है, अली रज़ा के मुतालिक कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है, और अली रज़ा इवन इस वकूए के बाद हडियारा गांव में फायरिंग होती है तो उस फायरिंग का मुल्ज़िम वो ज़रूर है। ठीक है। तो अब एक बंदा या तो हडियारा गांव में फायरिंग कर सकता है या यहाँ पे कत्ल कर सकता है। तो ये चीज़ एक टर्निंग पॉइंट थी। जिस वक्त अली रज़ा को हम दोबारा पकड़ने में कामयाब होते हैं, अली रज़ा से पूछते हैं, उसने कहता है जी बिल्कुल मैंने मारे हैं बंदे। तो वो इतराफ़ कर लेता है, इतराफ़ जुर्म कर लेता है, ठीक है, मैंने मारे हैं। ठीक है। अब जो मुद्दई हैं वो इस चीज़ पे बज़ीद हैं कि ये तो बंदा वहाँ पे था नहीं। ये चीज़ एक हमारे लिए थोड़ी मुश्किल आई क्योंकि आज से 2-4-5 साल पहले का जो थी पॉलिसिंग उसमें तो हम फिज़िकली इंटरोगेट कर लेते थे चीज़ों को और चीज़ें सामने आ जाती थी। अब आजकल की पॉलिसिंग में जो आप मॉडर्न पॉलिसिंग कर रहे हैं इसमें फ़िज़िकली किसी को जो है इंटरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसका हाल हमने ये निकाला कि हम अली रज़ा को लेके क्राइम सीन पे दोबारा गए हैं। उसे कहा कि रिक्रिएट करे क्राइम सीन को, उसने किस जगह पे उनको रोका, किस जगह पे पहला फायर किया, किस जगह पे दूसरा फायर किया। जब हम उसको रिक्रिएट करने के लिए लेके गए तो वो रिक्रिएट नहीं कर पाया अपना सारा। जब वो क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं कर पाया तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। जब उसको फिर दोबारा जो दूसरा मेन अक्यूज था जिसकी जगह पे वो अब कह रहा था कि मैंने मारे हैं, शबीर की जगह पे वो कह रहा था कि मैंने मारे हैं और दोनों पिस्टल मेरे हाथ में थे, मैंने दोनों पिस्टलों से फायरिंग की है। ठीक है। जब उससे पूछा कि इससे पहले कभी चलान हुआ है तो वो पिस्टल भी उसको चलाने का भी प्रॉपर कोई तजर्बा नहीं था, तो दोनों पिस्टलों से वो फायर भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जब हमने इनको आमने सामने बिठा के कॉन्ट्राडिक्ट की तो उसने ये तस्लीम किया कि जी शबीर के चूँकि छोटे छोटे बच्चे थे और मेरा चचा था तो मैंने कहा जी मैं इसको बचा लूँ, तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं कबारा हूँ, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। कुर्बानी दे रहा था, कुर्बानी दे रहा था। और दूसरा उसको वकील साहब ने, उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने मशवरा दिया था कि चूँकि तुम नॉमिनेटेड नहीं हो, अगर तुम अपने ऊपर एडमिट कर लेते हो तो किसी भी बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी और पुलिस ट्रैप हो जाएगी और ये चीज़ें। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि वो हम उसमें ये कामयाब हुए हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने में। शबीर हमारा मेन मुल्ज़म है, अमजद मुल्ज़म है, जो 4 मुल्ज़म हैं, अजीम है, ये सारे हम पकड़ चुके हैं। चारों इस वक्त हमारी हिरासत में हैं, इन कस्टडी हैं और इन्होंने 2 लोग हसन और शहजाद वगैरह को नाजायज़ कत्ल किया। ठीक है। अच्छा जहाँ साहब होता ये है कि जो दरीना दुश्मनी होती है ये एक दूसरे पे इनकी तरफ से मुकदमात भी होते हैं। जिस तरह से DSP बरकी के पास ये जाते हैं और वहाँ पे जाके दोनों पार्टियाँ पेश होती हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है, इससे पहले भी आपको पता होगा कि इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि जब पुलिस को मिल के ये वापस जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई घात लगा के तो बैठा होता है और इस तरह से अटैक होता है। तो पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि पुलिस पार्टी को सुन के, दोनों पार्टियों को सुन के भेजती है और रास्ते में फिर कत्ल हो जाते हैं? सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सोसाइटी को एज ए सोसाइटी ग्रो करने की ज़रूरत है। अब ये देखें कि सर जब कत्ल होगा उसमें जब तक हम दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं, तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम जो है ना वो कर सकें, सर्टन कर सकें कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। लेकिन अब जब जिस वक्त दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं तो दोनों को पता होता है कि ये आ रहा है, आज दोनों ने हमने इकट्ठे होना है, ये लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे। तो अब हम वहाँ पे जो प्रेमिसेस है उसके अंदर तो ड्यूटी डिप्लॉय कर सकते हैं। चूँकि इंसिडेंट्स ने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, हमने वहाँ पे अच्छी ड्यूटी डिप्लॉय करते हैं। अब जब भी हम कत्ल के मुल्ज़मान को बुलाते हैं इंश्योर करते हैं कि किसी के पास असला ना हो। एक बंदा अगर थाने से बाहर बैठा है और असला लेके बैठा हुआ है तो उसका तो नहीं हमें अंदाज़ा हो सकता कि ये थाने के बाहर कौन बैठा है। वो भी हम उसका भी हमने काफ़ी हद तक ये तोड़ किया है कि मुहाफ़िज़ मुजाहिद जो हमारे होते हैं वो रैंडम सर्चिंग करते हैं। अब इस इंसिडेंट में आप टिपिकली देख लें कि बरकी थाना और जो क्राइम सीन है उसके दरमियान तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर
4 किलोमीटर का फ़र्क है। तो अब उन्होंने रास्ते में कहीं ना कहीं उसको घेर लिया और इसका पुलिस के पास हल नहीं है। सिर्फ इसका जो है ना वो सोसाइटी एज ए सोसाइटी जब ग्रो करेगी, बताया जाएगा और हमारा कानून इतना ताकतवर हो जाएगा कि पता होगा कि जिसने कत्ल किया उसको सज़ा मिल जाएगी, तो लोग ऐसी कस्में खाने भी छोड़ देंगे और ऐसे कत्ल होने भी थोड़े कम हो जाएंगे। दुश्मनी चली आ रही थी। पहले एक ख़ानदान का एक बेटा कत्ल हुआ, उन्होंने उनके 2 लड़के कत्ल कर दिए, फिर उन्होंने उनके कत्ल कर दिए। उसके बाद एंड पे आके इस हद तक हाई हैंडेडनेस की कि 2 उनके ख़ानदान के लोगों को कत्ल करके उनके सर जो है वो काट के चौक में लटका दिए। इतना इस कदर उनके अंदर रंज था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिरगा बैठा और गांव के लोगों ने कि ये तो पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने उनकी सुलह करवाई। यानी ये कि हमें अब हम उस वक्त में आ पहुँचे हैं कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन देरीना कत्लों से सिर्फ हमारी नस्लें तबाह होंगी और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें यह है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे बड़ी वजह यह है मुआशी बदहाली का हम शिकार हैं, दूसरे हम अना का शिकार हैं। अगर ये अना और मुआशी बदहाली को निकालें तो शायद इसमें कुछ कमी आ सके। इस तरह की जब सूरत हाल होती है कि एक ख़ानदान जो है वो एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाता है या कत्ल कर देता है, तो दूसरे की ख्वाहिश होती है कि इन्होंने हमारा एक बंदा मार दिया है तो अब हमने इनके 10 बंदों के ख़िलाफ़ FIR करवा देनी है। वो उनके 10 बंदों के ख़िलाफ़ FIR करवा देते हैं। उनमें से कोई 1-2 जो हैं वो उनके अगेंस्ट पुलिस प्रोसीड करके उन्हें गुनहगार करती है, बाकी बेगुनाह हो जाते हैं। जो बेगुनाह हो जाते हैं फिर उनको मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है कि इन्हें क्यों छोड़ दिया गया है। और आए रोज़ आप देखते हैं जैसे कोर्ट कचहरी में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी है और हर रोज़ जो है जहाँ पे एक्विटल हो जाती है वहाँ पे बदला लेने की आग जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर दोबारा से भड़क उठती है। तो इसमें जो है वो सीरियसली सोचने की ज़रूरत भी है और कानून जो है वो उसको भी इसमें थोड़े बेहतर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि जो वाकई ही जिन लोगों के कत्ल हुए हैं वहाँ पे उन लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ ताकि लोगों का इंसाफ पे जो है वो ट्रस्ट बहाल हो। आजकल हमारे मुल्क में जो हालात हैं और इसके अलावा भी देरीना दुश्मनी पे आए रोज़ कत्लो गारतगरी होती रहती है। जब एक फ़र्द जो है मारा जाता है किसी एक ख़ानदान का तो वो उसे अना का मसला बना के जब तक दूसरे ख़ानदान को मार नहीं लेता वो चैन से नहीं बैठता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंटली जो हमारे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कत्ल हुए हैं, देरीना दुश्मनी की नज़र हुए हैं, जिसमें बार के तकद्दुस को भी पामाल किया गया और हाई कोर्ट बार रूम के अंदर उन्हें कत्ल कर दिया गया। क्या वजह थी? देरीना दुश्मनी जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, जिसमें बारहा जिरगे हुए लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई और नाकामी ने हमें हमारे एक सीनियर एडवोकेट से भी महरूम किया और ये सिलसिला अब आगे मज़ीद चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हमने चूँकि गुर्बत भी है और लोगों के पास शायद और कोई काम भी नहीं है, तो वो इस चीज़ में उलझ के रह गए हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर एक ख़ानदान का एक बंदा मर गया है तो चलें उसको कोई सुलह सफाई की तरफ ले जाएं, लेकिन इसकी बजाय वो पूरे ख़ानदान को, जिनका मर जाता है वो पूरे ख़ानदान को इन्वॉल्व कर देते हैं और उनका मुआशी कत्ल कर देते हैं। उसके बाद जब वो उनका मुआशी कत्ल हो जाता है तो वो दूसरी तरफ ये सिलसिला जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। इसकी मिसाल मैं एक केस कर रही थी, रेड़का बाला हमारा एक गांव है मंडी बहाउद्दीन के करीब, वहाँ पे दुश्मनी चली आ रही थी। पहले एक ख़ानदान का एक बेटा कत्ल हुआ, उन्होंने उनके 2 लड़के कत्ल कर दिए, फिर उन्होंने उनके कत्ल कर दिए। उसके बाद एंड पे आके इस हद तक हाई हैंडेडनेस की कि 2 उनके ख़ानदान के लोगों को कत्ल करके उनके सर जो है वो काट के चौक में लटका दिए। इतना इस कदर उनके अंदर रंज था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिरगा बैठा और गांव के लोगों ने कि ये तो पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने उनकी सुलह करवाई। यानी ये कि हमें अब हम उस वक्त में आ पहुँचे हैं कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन देरीना कत्लों से सिर्फ हमारी नस्लें तबाह होंगी और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें यह है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे बड़ी वजह यह है मुआशी बदहाली का हम शिकार हैं,
दूसरे हम अना का शिकार हैं। अगर ये अना और मुआशी बदहाली को निकालें तो शायद इसमें कुछ कमी आ सके। इस तरह की जब सूरत हाल होती है कि एक ख़ानदान जो है वो एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाता है या कत्ल कर देता है, तो दूसरे की ख्वाहिश होती है कि इन्होंने हमारा एक बंदा मार दिया है तो अब हमने इनके 10 बंदों के खिलाफ FIR करवा देनी है। वो उनके 10 बंदों के खिलाफ FIR करवा देते हैं। उनमें से कोई एक दो जो है वो उनके अगेंस्ट पुलिस प्रोसीड करके उन्हें गुनहगार करती है, बाकी बेगुनाह हो जाते हैं। जो बेगुनाह हो जाते हैं फिर उनको मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है कि इन्हें क्यों छोड़ दिया गया है। और आए रोज़ आप देखते हैं जैसे कोर्ट कचहरी में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी है, और हर रोज़ जो है जहाँ पे एक्विटल हो जाती है वहाँ पे बदला लेने की आग जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर दोबारा से भड़क उठती है। तो इसमें जो है वो सीरियसली सोचने की ज़रूरत भी है, और कानून जो है वो उसको भी इसमें थोड़े बेहतर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि जो वाकई ही जिन लोगों के कत्ल हुए हैं वहाँ पे उन लोगों को सज़ाएं दी जाएं, ताकि लोगों का इंसाफ पे जो है वो ट्रस्ट बहाल हो और वो अपनी जो अंधाधुंध दुश्मनियां हैं उनसे निकलें और हमारा इंसाफ का सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद करें। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो देरीना दुश्मनियों को मज़ीद बढ़ा रही है वो इंसाफ की फराहमी की कमी है। तो इसमें अदालतें जो हैं उन्हें चाहिए कि वो माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस पे लोगों की एक्विटल की बजाय ये ज़रूर देखें कि एक कत्ल तो हुआ है और एक इंसान का कत्ल जो है वो रायगा नहीं होता, और अगर उनका कत्ल रायगा नहीं जाएगा तो फिर लोगों में शायद ये बदले की आग कुछ कम हो सके। तो जब लोग जो है वो एक देरीना दुश्मनी की वजह से एक दूसरे की कत्लो गारतगरी तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही इसमें काउंटर लिटिगेशन जो है उसमें डे बाय डे इजाफा हो रहा है। एक बंदे ने अगर किसी की टांग तोड़ दी है तो दूसरा कहता है मैंने इसका बाजू ज़रूर तोड़ना है, और अगर उसने नहीं तोड़ा तो उसने खुद तोड़ के उनके खिलाफ क्रॉस वर्शन ज़रूर दर्ज करना है। तो इस टेंडेंसी को भी कर्ब करने की ज़रूरत है। उसमें यह है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ फ्राहम करें ताकि लोग काउंटर लिटिगेशन से भी बचें, और उनका हमारी अदालतों पे जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार हो रहे हैं उस अदम तहफ़्फ़ुज़ी से वो बाहर निकलें और उनकी दादरसी हो, ताकि वो इंसाफ के लिए सिर्फ अदालतों की तरफ देखें, खुद इंसाफ करने ना चल पड़े।